बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Our next family is Pipaveraceae. इस Pipaveraceae family को आप Pipiver somniferum के नाम से भी याद रहती है आपको, क्योंकि इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट जो प्लांट है दैट इज Pipiver somniferum, वो हमें काफ़ी उसके बारे में नो हाउ है बिकॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन ऑफ इट्स यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ heroin as well. Although only containing a few hundred species, the Pipaveraceae is renowned worldwide for its beautiful and useful plant. बेसिकली इसके जो सारे फ्लावर्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, तो इसलिए इस पेपरवेरेसी फैमिली जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत रिनाउंड फैमिली है. The family is mainly in the northern hemisphere with numerous species in Eastern Asia as well as Western Northern America, including California. The family is noted for its alkaloids and opiates, which are widely used in medicine as well as misuse at narcotics. इस जो फैमिली है उसमें बहुत पोटेंट अल्कोलॉइड्स और ओपिएट्स शामिल हैं, जो कि ना सिर्फ एज अ मेडिसिन यूज होते हैं बल्कि एज अ नारकोटिक भी यूज होते हैं. The only edible use of the family is for poppy seeds, bread, and other pastries. The seeds, ironically, coming from the opium poppy. ये जो opium इसको खशखाश भी बोलते हैं, opium seeds होते हैं जो कि इसके pot से निकलते हैं और इसको जो है यूज किया जाता है for edible purposes के लिए. The family is also noted for a plethora of beautiful garden ornaments. इसके वास्ट नंबर ऑफ फ्लावर्स की वजह से जो ऑर्नामेंटल गार्डन्स के तौर पे यूज होते हैं, इसलिए भी फैमिली ये जानी जाती है. वेजिटेटिव herbaceous, it is mainly herbaceous with only a handful of woody members. ज़्यादातर जो ये plants हैं इसके वो shrubs और herbs type के हैं और बहुत few plants हैं जो कि basically woody members कहलाते हैं इसके. Besides the stem containing a clear to milky sap, the family is noted for a wide variety of leaf shapes, including highly dissected fern-like leaves, spiny thistle-like leaves, and simple to deeply lobed leaves. The plants range from short-lived diminutive annuals to small trees, the majority being biennials and perennials. As it was originally defined, the poppy family had an easy-to-learn floral formula. इसका floral formula is very easy. Often single large flowers होते हैं इसके. Sepals that fall off as the flower opens. Sepals are half the number of petals, usually 2 sepals and 4 petals and 3 sepals with 6 petals. Mostly numerous stamens with abundant pollen to replace the lack of nectar for pollinators. A compound pistil of several carpel with a superior ovary and single style. The type genus Papaver contains several species such as famous opium poppy, that is Papaver somniferum. So we'll talk about Papaver somniferum first. इसकी family है Pipaveraceae. ओरिजिन इसका मेसोपोटामिया या मेडिटेरेनियन रीजन से कहते हैं कि इसका स्टार्ट हुआ था. प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं. हाइट इसके 3 to 4, जैसे ये आपको राइट साइड पे जो इसके पिक्चर्स है इसमें आपको ये नजर आता है, ये 3 to 4 फीट के होते हैं प्लांट्स. कलर वाइट, पर्पल, पिंक, ये तीनों टाइप के फ्लावर्स होते हैं इसके. सीड्स जो है अबाउट 200 सीड्स पर पॉड इसके निकलते हैं. फ्लावर्स इसके hermaphroditic हैं. सीजन्स इसके मार्च टू टिल मई में होते हैं. ब्लूम होता है. एडिशनल फैक्ट्स दैट इट इज lacticifer. Uses of Papaver somniferum, इसके medicinal purposes में है morphine, codeine, narcotine, thebaine. Illicit purpose means इसके जो है ऐसे जो कि यूज होता है नाजायज जैसे कहना चाहिए, ठीक है. illicit purposes, opium and heroin illicit purposes के लिए यूज होता है. फूड के तौर पे पॉपी सीड्स, ऑयल, उसका ऑयल, केक एंड फ्लोर सैलड इसके अंदर यूज होता है. ऑर्नामेंटल्स एंड डेकोरेशंस के अंदर फ्लावर्स और गिल्डेड एंड पेंटेड कैप्सूल को जो है वो उसके ऊपर गिल्डेड मीन्स के सोने की तार चढ़ा के, सोने का जैसे चांदी का वर्क होता है ना, इस तरह से गिल्डेड, इसको गिल्डेड बोलते हैं. गिल्डेड एंड पेंटेड कैप्सूल्स. अफोर्डाइसियक, बेबी रटल्स के तौर पे भी यूज होता था पहले पुराने जमाने में. बर्ड फूड,
copper indicator, fuel and currency. Medicinal purpose में morphine can be between 3 to 23% of opium. जितना opium contents हैं उनमें 3 to 23% जो है वो morphine होता है. Principal alkaloid है opium का ये morphine compound. Isolated discovery by F.W. Turner in 1805 में इसको discover किया था इन्होंने. Primarily used to relieve pain by acting directly on the central nervous system. इसका direct action होता है central nervous system पे. Burst into the scene with invention of hypodermic needle in 1853. 1853 से पहले जो ये जो इंजेक्शन जिसे हम कहते हैं वो नीडल जो है ना इजाद नहीं हुई थी. इसी वजह से इसका यूज़ तो खैर था, लेकिन ये जो सही वाला यूज़ है ना, और स्पेशली हीरोइन का इसको भी इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली, तो उसके बाद से तो इसका यूज़ बेइंतहा बढ़ गया था. यूज एज अ क्योर फॉर ओपीएम एंड हीरोइन एडिक्शन. पहले इसको हीरोइन और ओपीएम की एडिक्शन के लिए जो है ना काउंटर एक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था. जब तक ये नहीं पता था उस वक्त इसकी जो है ना एडिक्टिवनेस का इतना अंदाज़ा नहीं था. बाद में इसकी एडिक्टिवनेस का अंदाज़ा हुआ तो इसको जो है रोक दिया गया. कोडीन can be between 4.1 to 4% of opium contents. जितना भी होता है उसके अंदर content होता है उसमें से जो है 0.1 to 4% opium के codeine होता है. Most codeine extracted from morphine through O demethylation, क्योंकि इनका जो structure है वो similar होता है. morphine ही को अगर methylation की जाए उसकी तो उसी से codeine बनती है, उसी से thebine बनती है. तो इसको यूजुअली मॉर्फिन हासिल करके उसको डीमिथाइलेशन करके जो है ना उसको किया जाता था. ठीक है, लेकिन 8 to 12% द स्ट्रेंथ ऑफ मॉर्फिन, ये जो है मॉर्फिन से कम पोटेंट होता है. मतलब कि मॉर्फिन की 8 से 12% उसकी एक्टिविटी है उस मतलब 8 से 12% जितनी एक्टिविटी मॉर्फिन की उसकी सिर्फ 8 to 12% एक्टिविटी होती है इसकी. तो इसकी डोज किस तरह से बनती है? 200 मिलीग्राम ऑफ कोडीन इज इक्वल टू 30 मिलीग्राम ऑफ मॉर्फिन के बराबर होती है. मोस्ट वाइडली यूज्ड ओपिएट एंड ड्रग इन द वर्ल्ड, कॉमनली यूज्ड विद टाइलेनॉल एंड एस्पिरिन के साथ इसके कॉम्बिनेशन में कोडीन यूज की जाती है. इलिसिट पर्पसेस के लिए हेरोइन बनाई जाती है. हेरोइन और ओपीएम जो है उसको भी यूज़ किया जाता है. इसकी रॉ ये इस तरह से भी यूज़ की जाती है और इसको ड्रिंक किया जाता है और स्मोक किया जाता है. Number 2 is Sanguiana canadensis. इसकी फैमिली, एज वी आर डूइंग पेपरवेरेसी, तो ये पेपरेसी फैमिली से बिलोंग करती है. बोटानिकल नेम इसका सेंगुनारिया कैनाडेंसिस. पार्ट्स यूज इसके राइट रूट्स एंड राइजोम्स यूज होते हैं, जबकि उर्दू नेम इसका अर्कुदाम है, इंग्लिश नेम इसका ब्लड रूट है. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके बहुत सारे हैं, बट मेजर जो इम्पोर्टेंट है दैट इज सेंगुइनरीन, बर्बरीन, कसीन, नारसीन, प्रोटोपीन, रेजिन. ये इसके इम्पोर्टेंट अल्कलॉइड्स भी हैं और रेजिनस भी मटेरियल है, और ये जो है इसके डिफरेंट एक्शंस भी हैं. Basically, it is insoluble in water, soluble in methanol, soluble in ether, soluble in benzene. ये मैंने आपको उस वक्त बताया था कि जब soluble extractives कर रहे होते हैं कि आपको जब आप इसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, उस वक्त आप इसकी solubility चेक करते हैं ताकि आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकें और इसकी जो है वो प्योरिटी और क्वालिटी चेक कर सकें. यूजर्स इसके sanguinarine or chilitharine or berberine and chilidonine are used as anti-inflammatory. उसके अलावा इसका chilirithine जो है is an antibacterial for Staphylococcus aureus. Sanguinarine is also used as anti-cancer, mainly used for the treatment of breast cancer. Berberine is used as anti-arrhythmatic, जबकि colchicine is used as antidepressant. Narcine is used as a psychoactive agent, a psychoactive drug. Protopine and narcine is used as analgesic. Narcine is used to induce vomiting, to expel any toxic substance that is swallowed. Sanguinarine is used as antibacterial for Helicobacter pylori to treat gastritis. When extract is used in mouth, rinses or toothpaste, prevent and cure the plaque.
Extras is used as blood purifier. Copticine is used as heart protective agent. Protopine is used to smooth muscle relaxant. इसके लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं. कॉजेज लोकलाइज्ड टिश्यू डैमेज, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं. सेंगुरिन इनहिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को. व्हेन टेकन ओरली एंड swallowed इट कॉजेज वॉमिटिंग. मे कॉज रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल. इसके कॉज में भी देखो, अगर इफ समथिंग विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड देन वो साइड इफ़ेक्ट्स में आ जाती है. इसको इसके लिए भी स्मूथ मसल रिलैक्सेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज इट इज़ अनडिजायरेबल इफेक्ट on vomiting as well. ठीक है. Toxicity may be caused when taken in large doses, causing nausea, vomiting, sedation, low blood pressure, shock, coma, itching, and irritation of mucosa, and eventually death. अब अगर आप इसके डोज का ख्याल नहीं रखेंगे वाइल टेकिंग या अगर गिविंग, तो इसकी ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है जो इवेंचुअली डेथ की तरफ भी लेके जा सकती है. इफ एक्सट्रैक्ट इज मोर कंसंट्रेटेड इन टूथपेस्ट और रिंसेस मे कॉज माउथ कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकता है. इफ टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाई लेवल्स ऑफ हिस्टामिन कॉजेज इन्फ्लेमेशन टू फीटस व्हिच मे प्रूव फेटल. अगर इसकी देखा जाए तो टॉक्सिसिटी इसकी बहुत ज़्यादा सिवियर है. The chemical constituents may be secreted in milk and may cause toxicity to the child which is on breastfeeding. यानी breastfeeding mothers भी नहीं ले सकती, pregnant mothers भी नहीं ले सकती. इसके अलावा at higher concentration sanguinarine, it may cause necrosis and thus cancer. तो डोजेज इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड है. 10 to 20 drops may be mixed in 6 ml of water and take after every 2 hours or 6 hours. It is talking about the mother tincture या mother जो वो है extract, उसके बारे में बात की जा रही है. Blood root tea, boil 1 teaspoon of rhizome to a cup of water for 20 minutes. Drink 3 times per day. Bloodroot tincture, that is 1 to 2 ml of tincture 3 times a day. अगर tincture है तो gingivitis के लिए oral rinses may contain 300 microgram of the extract. और ये जो 10 to 20 drops हैं, ये जो है concentrated extract की बात हो रही है. Use the rinses twice a day up to 6 months. For periodontal disease, rinses may contain 0.1% of the extract. अगर पेरियोडेंटल डिजीज है तो उसके लिए सिर्फ 0.1% ऑफ द एक्सट्रैक्ट यूज होगा. मस्ट यूज डेली अप टू 6 weeks. फॉर चिल्ड्रन देयर इज नो प्रूवन सेफ और इफेक्टिव डोज, मींस इसको आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन रखना चाहिए. Contraindications: use of sanguinary canadensis may be avoided during pregnancy and breastfeeding because इसकी toxicity बहुत profound है. दोनों में large doses must not be taken orally in the form of paste, must be avoided if suffering from diarrhea, must not be used undiluted, and use must be avoided if the suffering from enteral gastritis or gingivitis. Thank you.